جیسے کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، کثیر زیادہ، اکثر اور زیادہ، مزید۔ تو تکرار اور زور دینے کے لیے اکبر من یعنی کس سے بڑا، اکبر من کس سے بڑا یعنی اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو آئیے اس کے اسباب دیکھتے ہیں۔ اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے۔ تو آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے، اتنا ہی دل سے اور تعریف سے کہہ سکیں گے کہ اے اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں۔ آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ یعنی آپ کوئی بھی چیز لے لیں، اس پہ اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کہہ اٹھیں گے کہ سبحان اللہ، اللہ تو کتنا بڑا ہے۔ مطلب جتنا آپ جو ہے نا اس کے بارے میں علم حاصل کریں گے، اتنا ہی آپ کا یقین بڑھتا جائے گا اور آپ کے تصور میں ہوگا کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا؟ کس کی بات سنی، اللہ کی یا نفس کی؟ نفس کی۔ نفس کی۔ تو دعا ہے کہ اے اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی نفس، خاندان یا لوگوں کے بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر ہم اپنے نفس کی بات مانیں گے تو نفس تو ہمیشہ ہمیں برائی کی طرف ہی مائل کرتا ہے، تو اس لیے ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، اپنے نفس کی بات نہیں ماننی۔ تو آئیے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ کم سے کم آپ لوگ 3 بار اس کو دہرائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو دہرائیے پلیز۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہاں، تصور میں یہ ہونا چاہیے، دہراتے وقت آپ کو تصور میں یہ ہونا چاہیے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہاں تو چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، یعنی شہادت، شہید، عینی، شاہد وغیرہ یہ جو ہم اردو میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا اعبدو، اعوذو، اعبدو کیا مطلب ہوگا اس کا، کوئی بتائے گا؟ اعبدو کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بندہ۔ اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں۔ تو اسی طرح اشہدو میں گواہی دیتا ہوں۔ ان کا مطلب ہے کہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اسی طرح لا الہ، لا کا معنی نہیں، الہ معبود۔ یہ دیکھیں جس طرح ہم نے پہلے بھی یہ لفظ پڑھے تھے، ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں، دوسرا اس کا مطلب ہے کیا، اور تیسرا مطلب جو، اور لا کا معنی نہیں، لم نہیں یعنی ڈڈ ناٹ، لن ہرگز نہیں یعنی ول ناٹ۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الہن معبود، آلہتن اس کی جمع ہے، الہن کی جمع ہے آلہتن۔ الا اللہ، اللہ سوائے، اللہ اللہ سوائے اللہ کے، الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی اگر ہم اسے پورا ملا کے پڑھیں گے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ ہو تو پوری اس کا ترجمہ یہ ہوگا میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو مطالعے کے بعد ہم دعا کریں، اپنا احتساب کریں اور آگے کے لیے پلان بنائیں اور دوسروں کو اس کے بارے میں بتائیں۔
चलिए इसके असबाक लेते हैं। इलाह, इलाह के अहम मानी ये हैं जिसकी इबादत सजदा किया जाए, जिससे मदद मांगी जाए, जिस पर तवक्कल किया जाए और जिसका शुक्र अदा किया जाए, जिसका हुक्म माना जाए। इन तमाम में अल्लाह ताला के सिवा कोई इलाह नहीं है। तो इसका कोई तर्जुमा करके देगा मुझे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कोशिश कीजिए प्लीज, कौन करेगा? मैं अशहदु अशहदु मैं गवाही देता हूँ अन्ना के ला इलाहा नहीं कोई माबूद इल्ला सिवाय इल्लल्लाहु अल्लाह के। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये देखें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। यानी मैं शहादत देता हूँ, यानी मेरी बातें और मेरा अमल, यानी मैं सिर्फ यही नहीं कहता नहीं हूँ, मेरे अमल से मेरी बातों से भी ये जाहिर होना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, सिर्फ अल्लाह ही है। हम घर में या बाहर, ऑफिस में, बाजार में, यानी जहाँ भी हो, हमारे अमल से ये पता चलता हो कि मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, इसी को खालिक मानता हूँ, इसी को अपना मालिक रब मानता हूँ और सारी कायनात का हाकिम मानता हूँ, इसी की इबादत और अताअत करता हूँ, इसी से मदद मांगता हूँ और इसी पर भरोसा करता हूँ, और जिंदगी के हर पहलू में इसके कानून पर चलता हूँ, ना कि अपनी मर्जी पर और ना अपनी ख्वाहिशात पर। यानी जो अल्लाह की मर्जी है वही मेरी मर्जी है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि हमें लोगों पर इस्लाम की शहादत देनी है, दावत देनी है, लोगों को बताना है कि इस्लाम क्या है। हर अजान, हर अकामत और हर तशब्बत में हमको ये काम याद दिलाया जाता है। अफसोस के कितनी बार याद दिलाने के बावजूद हम मुसलमान इस काम से बहुत दूर हैं। आइए दुआ करें कि अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। तो तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हम इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप भी 3 बार दोहराइए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तर्जुमे को ज़हन में रखते हुए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये देखते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मुहम्मदन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। यानी मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अन्ना, अन्ना का मानी कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अन और अन्ना, इसका क्या मीनिंग है दोनों का? के हाँ, देखिए दोनों अन और अन्ना, इन दोनों का मानी है के। इनका क्या मानी है? में अगर इनका मानी है अगर, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे और इसकी मिसालें भी देखेंगे। उनसे इस तरह तो बहुत कम लोगों को याद रह जाता है, जब हम मिसालों के साथ याद करेंगे ना तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी, हमें बहुत जल्द याद हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखें, इनका मानी है अगर, और इसको हम कैसे याद करेंगे? इंशाअल्लाह। अगर वैसे आपसे पूछा जाए तो आप भूल जाएंगे, अगर मिसाल के साथ आप याद करेंगे फौरन से, जैसे आपको याद होगा इंशाअल्लाह, तो आपको याद आ जाएगा कि इनका मानी है अगर। तो इसकी मिसाल हम इंशाअल्लाह से लेते हैं। इसी तरह इन्ना, तो इसकी मिसाल हम कैसे लेंगे? इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। ये आपने याद करने हैं, तो आपको बहुत आसानी से ये छोटे छोटे जो लफ्ज हैं जो कंफ्यूज करते हैं, तो ये आपको याद हो जाएंगे। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन,
इन्ना यानी बेशक, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, इसका पूरा तर्जुमा ये होगा। ये देखें अब, अन, अन्ना, इन और इन्ना। अन अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, हम इसकी मिसाल से इसको याद करेंगे। और अन्ना को अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इन इंशाअल्लाह, इन्ना इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो इसे दोहराए कोई प्लीज, ताकि आपको पक्के हो जाएं ये लफ्ज। अन, अन्ना और इन, इन्ना। तो इसको हम किस तरह याद करेंगे? प्लीज दोहराइए। अन अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अन्ना अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, इन इंशाअल्लाह, इन्ना इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। कोई और भी दोहरा दे। अन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अन्ना अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन्ना इंशाअल्लाह, इन्ना इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इन इंशाअल्लाह, ये इसलिए करवाए जा रहे हैं कि ये थोड़े बहुत फर्क के साथ मिलते जुलते हैं। अगर आपको मिसालें याद होंगी ना, तो आप जो है ना अच्छी तरह इनमें फर्क कर सकेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो हमें दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। तो आप भी अपनी जगह दुरूद शरीफ पढ़ें। रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। रसूल, रुसल उसकी जमा है, रसूल की जमा रुसल। तो मुताले के बाद दुआ करें और अपना एहतसाब करें और प्लान बनाएं और इसके बारे में दूसरों को बताएं। तो इसके असबाक लेते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं शहादत या गवाही देता हूँ, यानी मेरी बातें और मेरा अमल घर में या बाहर, ऑफिस में, बाजार में, ये बता रहा है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात को बिला चुआ मानता हूँ। कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हक़ व बातिल की कसौटी मानता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के लिए मुझे दूसरी कोई दलील की जरूरत नहीं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया वही मेरी पसंद है। कुरान आपको बहुत सी दलीलें देगा, लेकिन आपने कभी भी उसकी बात को नहीं मानना। तो चलिए तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ इसका भी हम इसकी तिलावत भी करते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो 3 बार आप भी दोहराइए। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तर्जुमे को ज़हन में रखते हुए। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। हय्या अला आओ तरफ, हय्या अला नमाज पर, यानी नमाज की तरफ। अस्सलात नमाज के, सलात नमाज, सलावात उसकी जमा है। हय्या अला नमाज पर, यानी हय्या अला आओ तरफ नमाज। अल फलाह कामयाबी, हय्या अल फलाह कामयाबी। फलाह, फलाह आखिरत, फलाह दारीन, ये हम उर्दू में भी पढ़ते रहते हैं। तो चलिए इसके असबाब देखते हैं। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ तरफ नमाज के, आओ तरफ कामयाबी। ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो अपनी अपनी जगह पर या अपने घर में, बल्कि नमाज की तरफ आओ कहा गया है। यानी मस्जिद में पढ़ने आओ, गोया नमाज को कायम करो। नमाज को आओगे तो हर किस्म की फलाह मिलेगी और फलाह का रास्ता भी। दिल और दिमाग को फायदे। नमाज का कामिल जिक्र है, अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलेगा। नमाज में कुरान पर गौर करोगे तो हदायत में, ईमान में
अक्ल व हिकमत में इजाफा होगा। आखिरत पर गौर करने से दिल और दिमाग को दुनियावी फिक्रों से आज़ादी मिलेगी। जिस्मानी फायदे, वजू के जरिए सफाई, नमाज के लिए आना जाना, उठना, झुकना, सजदा करना, बैठना वगैरह। वक्त की पाबंदी की आदत बनेगी, मसलन सही वक्त पर सोना, उठना, नमाजों के हिसाब से अपने कामों का प्लान बनाना वगैरह। नमाज पढ़ने के बहुत से जिस्मानी फायदे हैं। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं भी करते, अगर नमाज को सही तरीके से अदा करते हो तो गोया ये हमारी एक्सरसाइज भी है। इज्तिमाई फायदे, मसलन रोजाना पड़ोसियों से मुलाकात होगी, इनकी खुशी गमी की खबरें मिलती रहेंगी और हर वक्त जरूरत हम इनकी मदद कर सकेंगे, ताल्लुकात मजबूत होंगे, मुआशरा बेहतर बनेगा। सबसे अहम फायदा, आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए फलाह नसीब हो। ये फलाह की तज़कीर इसलिए भी कि इंसान नमाज को नहीं आता, ये समझकर कि मेरे फलाह का काम रुक जाएगा, इस नादान शख्स की तरह जो किसी चीज की तलाश में उल्टी सिमत भागे। तो इसकी भी हम प्रैक्टिस करते हैं। हय्या अलस्सलाह हय्या अल फलाह, आओ तरफ नमाज के, आओ तरफ कामयाबी के। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला नहीं है, इला कोई माबूद, इल्ला सिवाय अल्लाह, अल्लाह के। आखिर में वही कलमात जिससे अजान शुरू हुई, मगर यहाँ गोया इस बात का ऐलान है कि इसकी बड़ाई को मानते हुए आ जाओ। अगर ना मानो तो भी अल्लाह अपनी जगह बड़ा है, यानी अगर तुम नहीं भी मानोगे तो अल्लाह तो अपनी जगह बड़ा है ही। तुम्हारे आने या ना आने से इसकी बड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ना, ना आकर तुम अपना ही नुकसान कर बैठोगे, जबकि इसकी पुकार पर लब्बाई करने से तुम ही दुनिया और आखिरत की फलाह पा जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, मौत को याद रखिए, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। तो हमें भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जो मेरा आखिरी कलमा हो वो ला इलाहा इल्लल्लाह हो। करीबुल मर्ग शख्स को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। ये कुछ सच्ची कहानी है। एक इमरजेंसी डॉक्टर जो कि एक अरब मुल्क में सर्विस कर रहा था, इसने बताया कि अपनी सर्विस के दौरान मैंने शायद 10 या 12 लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा। इनमें से सिर्फ 1 या 2 लोगों ने कलमा पढ़ा। एक लड़की जो हादसे का शिकार हो गई थी, जब इसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन दी गई तो इसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद इसने हल्की आवाज में गाना गुनगुनाना शुरू किया और फिर मर गई। अल्लाह माफ करे। अगर अल्लाह का जिक्र जुबान पर रहेगा तो मरते वक्त भी कलमा नसीब होगा। तो इसको आप प्लीज जरूर देखा कीजिए, नमाज से पहले या बाद में 2-3 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। अब हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं, यानी ग्रामर का। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा ग्रामर 5B में खुशामदीद। देखते हैं आज ग्रामर में लफ्ज की किस्में और हर्फ़े जर जैसे ली, मिन और अन सीखेंगे हम। ग्रामर TPI के साथ, यानी सुनिए, देखिए, सोचिए, देखिए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। मुस्लिम, मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हम मुस्लिमून। मन हुआ मुस्लिम, मन हम मुस्लिमून।
अल्फाज या कलमे की 3 किस्में हमने पढ़ा था। इसम का नाम किसी किताब यानी मक्का वगैरह या सिर्फ मुस्लिम मोमिन वगैरह, और जो है शुरू में उसके अलिफ लाम और आखिर में 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, और जमा बनाते वक्त बौ नून, जानून और अलिफ ता आता है। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, जैसे फतह और यामलून। हर्फ जो इसमों और फिलों को मिलाए, बी, ली, मिन, फी, इना। ये शुरू में हर दफा हम इसलिए कहते हैं ताकि ये चीजें आपको पक्की हो जाएं, क्योंकि यही बेसिक चीजें हैं। हरूफ इसम और फेल के अलावा हर चीज, यानी ला, ली इसका मतलब है लिए, मिन इनका मतलब से, अन से बारे में। इस सबक में सिर्फ 2 बातें, ला, ली, लिए। इसको हम किससे याद करेंगे? लिल्लाही से। मिन, मिन का मतलब से, इसकी मिसाल मिनश शैतान, और एक नया लफ्ज है अन, और हरूफ को हु, हुम, का, कुम, यी, न, हा से जोड़ना है। तो चलिए अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये देखें, ली और ला, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना। तो ये आप बनाइए प्लीज। कौन करवाएगा? ला, मिन और अन से इनको जोड़ते जाएं और इन टुकड़ों के साथ मिलाते जाएं। जी अमरीन दोहराइए। लाहू का बनाया पहले। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। जी महनाज आप मिन से बनाइए। मिन हूँ उससे, मिन हुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से। जी नाजिया आप अन से बनाइए। वो हमारा, इन उनका, अनहु उससे, मुझे नहीं आता। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से। जी अब बनाइए। सर मेरी तरफ टेबल शो नहीं हो रहे। आपकी तरफ टेबल नहीं शो रहा है? नुसरत आप दोहरा दीजिए। जी आप कह रही टेबल जी नहीं शो, आप रिज्वाइन जी कर सर मेरी लीजिएगा। तरफ अब नहीं टेबल शो हो रहे। आज प्लीज टेबल तो नजर आ रहे हैं, आपका वो टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होगा, आप दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल अगर आप बना सकते हैं तो अन से जो है ये टेबल बना दीजिए, वरना रिज्वाइन कर ले। रिज्वाइन करने से आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। ओके मैं रिज्वाइन करती चले आगे चलिए प्लीज। चले मैं खुद बना देती हूँ। अनहु, अनहुम, अन का, अन्नी, अनकुम, अन्ना। इसी तरह ली, ली का मतलब है लिए, जैसे अल्हम्दुलिल्लाही। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाही लिए, तो इसका तर्जुमा लहू और लहुम से। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। वलहू, वलहू, वलहू के कितने टुकड़े होंगे कौन बताएगा? 3। कौन कौन से? वा, ला, वा, ला और हु। इसका मतलब तर्जुमा क्या होगा? वा का मानी और, ला लिए, हु उसके, और उसके लिए है। वलहू और उसके लिए। तो अभी हम अरबी बोलचाल को लेते हैं। यानी कुरान सभी के लिए इसकी तरफ इशारा करते हुए हमने ये जो है ना बनाना है। अहाज़ा लहू, तो इसका क्या जवाब होगा? लहू, अहाज़ा लहुम,
नाम हाजा लहुम, अहाजा लका, नाम हाजा ली, अहाजा लकुम, नाम हाजा लना, नाम हाजा लकुम। नअम हाजा लहू, नअम हाजा लहू, एक बार फिर कर लेते हैं, अहाजा लहू, नाम हाजा लहू, नाम हाजा लहू, अहाजा लहुम, नाम हाजा लहुम, अहाजा लका, नअम हाजा लहू, ली हाजा ली, हाजा लकुम, नअम हाजा लहू, लना, लना, नाम हाजा लना, नअम तुम जो है हाजा तो ली, ना की तरफ। नअम हाजा लना, वाला हूँ, वाला हू का तर्जुमा ये देखते हैं, टेबल देखते हैं, लहू का, वाला हूँ उसके लिए, वाला हूँ और उन सब के लिए, वाला का और आपके लिए, वाली और मेरे लिए, वालकुम और आपके आप सबके लिए, वालाना और हमारे लिए। वाला हूँ, वाला हूँ, वाला का, वाली, वालकुम, वालाना, वाला हूँ, वाला हुम, वाला का, वाली, वालकुम, वालाना। तो चलिए आप बनाइए। जी कौन सिस्टर बनाएगा? नाज़िया प्लीज। वलहु, वलहुम, वलका, वाली, वलकुम, वलना। जी अमरीन आप तर्जमे के साथ दोहरा दीजिए। वाला हूँ और उसके लिए, वालहुम और उन सब के लिए, वाला का और आपके लिए, वाली और मेरे लिए, वालकुम और आप सबके लिए, वालाना और हमारे लिए। एक बार और दोहरा दीजिए। कौन दोहराएगा? वलहु और उसके लिए, वलहुम और उन सब के लिए, वलका और आपके लिए, वाली ही, वाली और मेरे लिए, वलकुम और आप सबके लिए, वलना और हमारे लिए। जी अमारा खान आप भी दोहरा दीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी वाला हूँ उसके लिए, वाला हुम उन सब के लिए, वाला का आपके लिए, वाली और मेरे लिए, वालकुम और आप सबके लिए, वालाना और हमारे लिए। जी आयशा तूर प्लीज आप भी दोहरा दीजिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट कीजिए। ये वाला हूँ और उन सबके लिए, वाला का और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वाला हूँ और आप सबके लिए, वालाना और हमारे लिए। आगे अब आगे चलते हैं। फाला हु, इसके कौन टुकड़े करेगा? मैम 3 टुकड़े होंगे, फा पस ला लिए हूँ उसके, पस Good. उसके, बस उसके लिए। ये देखिए, फाला हु, फा पस ला ये हु उसके, फाला हु 3 टुकड़े होंगे इसके। तो चलिए अब इसका फालाहू से टेबल देखते हैं। फालाहू बस उसके लिए, फालाहू बस उन सब के लिए, फाला का बस आपके लिए, फाली बस मेरे लिए, फालाकुम बस आप सबके लिए, फालाना बस हमारे लिए। फालाहू, फालाहुम, फाला का, फाली, फालाकुम, फालाना, फालाहू, फालाहुम, फाला का, फाली, फालाकुम, फालाना। तो चलिए अभी आपकी बारी। जी ईशा। फला हूँ बस इसके लिए, फला हूँ बस उन सब के लिए, फला का बस आपके लिए, फालहू फली बस बस मेरे लिए, उसके लिए, फलाकुम बस आप सबके लिए, फलाना बस हमारे लिए। जी अमरीन आप भी दोहरा दीजिए। फाला हूँ बस उसके लिए, फाला हूँ बस सबके लिए, फाला का बस आपके लिए, फाली बस मेरे लिए, फालाकुम बस आप सबके लिए, फालाना बस हमारे लिए। हमारा खान।
फालाहू पस उसके लिए, फालाहुम पस उन सब के लिए, फाला का पस आपके लिए, फाली पस मेरे लिए, फालाकुम पस आप सब के लिए, फालाना पस हमारे लिए। नाजिया वालाहु सबके लिए, पस उसके लिए, फालाहुम पस उनके सब के लिए, फाला का पस आपके लिए, फाली नजर नहीं आ रहा, फालाकुम पस आप सब के लिए, फालाना पस हमारे लिए। जी नुसरत प्लीज। नुसरत यास्मीन सिस्टर, आपका माइक अटैच नहीं है, आप दोबारा रिज्वाइन करें। चलें आगे चलिए। एक लफ्ज है मिन, मिन का मान है से, तो हम इसे किस मिसाल से याद करेंगे मिन को? शैतान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व मिनहु, तो इसके कितने टुकड़े होंगे, कौन करेगा प्लीज? व मिनहु, कितने टुकड़े होंगे इसके? 3 वा हु, और मिन से हु उसके लिए, और उस और मिन से हु उसके, इसके 3 टुकड़े होंगे। व मिन हु, व और मिन और हु का तर्जुमा है और उसके लिए। चलिए अब इसका टेबल करते हैं। मिन हु उससे, मिन हुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन हुम आप सब से, मिन्ना हमसे। मिन हु मिन हुम, मिन का मिन्नी, मिन हुम मिन्ना, मिन हु मिन हुम, मिन का मिन्नी, मिन हुम मिन्ना। तो चलिए प्लीज इसे फिर करवाइए। जी नाजिया आप दोहरा दीजिए पहले। मिनहु उससे, मिनकुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। गुड। ईशा टूर प्लीज। मिनको से, मिनकुम उन सब से, मिनका आप से, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। जी ताइमा सईद प्लीज, आपने अनम्यूट किया था, आप भी दोहरा दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलिए। चलिए किसी और से करवा लीजिए, प्रॉब्लम है उनका। जी हमारा आपने हैंड रेज किया, प्लीज आप दोहरा दीजिए, उसका प्रॉब्लम है। मिन हु उससे, मिन हुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। चलिए अभी जो है अरबी बोलचाल को लेते हैं हम। फर्ज कीजिए कि इसने मुझे एक किताब भेजी, तो मैं क्या कहूंगा? अहाजा मिन्हु, तो इसका क्या होगा? नाम हाजा मिन्हु। तो इसी डायलॉग को हम आगे बढ़ाते हैं। अहाजा मिन्हु, नाम हाजा मिन्हु। तो मैं आपसे सवाल करती हूँ, कोई जवाब दे। अहाजा मिन्हु, क्या जवाब होगा इसका? नाम हाजा मिन, नाम हाजा मिन्हु। अहाजा मिन्हुम, नाम हाजा मिनहुम, नाम हाजा मिन्हुम। और इसी तरह अहाजा मिनका, नाम हाजा मिन्नी, नाम हाजा मिन्नी। अहाजा मिनकुम, नअम हाज़ा मिनहुम, नाम हाजा मिन्ना। ये देखें, ये अभी पूरा टेबल है। अहाजा मिन्हु, तो इसका क्या होगा? हूँ, हाजा मिन्हु।
मिनहु का मिनहु से ही जवाब आएगा। अहाजा मिनहुम का क्या होगा? नाम मिनहुम नाम हाजा मिनहुम। अहाजा मिन का नाम हाजा मिन्नी। अहाजा मिनकुम नाम नाम हाजा मिन्ना। ये तो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा कि हु का जवाब हु से, हुम का हुम से। तब्दीली कहाँ पे आती है? जब हम कहेंगे मिन का किस तरफ? अपनी तरफ होगा, मिन्नी, मिन का मिन्नी। और जब हम कहेंगे कुम यानी आप सब, तो उसका जवाब होगा हमारी तरफ, मिन्ना, 4 उंगलियों से अपनी तरफ। चलिए आगे देखते हैं, इसका टेबल देखते हैं अभी। व मिनहु और उससे, व मिनहुम और उन सब से, व मिन का और आपसे, व मिन्नी और मुझसे, व मिनकुम और आप सब से, व मिन्ना और हमसे, व मिनहु व मिनहुम, व मिन का व मिन्नी, व मिनकुम व मिन्ना, व मिनहु व मिनहु व मिनहुम, व मिन का व मिन्नी, व मिनकुम व मिन्ना। तो चलिए इसका बनाइए। जी नाजिया प्लीज आप दोहरा दीजिए। वमिन्हु वमिन्ना, वमिन्हु वमिन, वमिन्हु, यही वाला पढ़ो आगे जो लिखा हुआ है। वमिन्हु वमिन्हुम, वमिन का, जिस तरह लिखा हुआ है आप उसी तरह पढ़ें। अच्छा वमिनकुम, आराम से आप दोहराएं। जी अच्छा। वमिन्हु वमिन्हु वमिन्हुम, वमिन का वमिन्नी, वमिनकुम वमिन्ना। जी अमारा खान आप दोहरा दीजिए। वमिन हो और इससे, वमिन हुम और उन सब से, वमिन का और आप से, वमिन्नी और मुझसे, वमिन कुम और आप सब से, वमिन्ना और हमसे। तमरीन आप दोहरा दीजिए प्लीज। मिनहु और उससे, वमिन और उन सब से, वमिन का और आपसे, वमिन्नी और मुझसे, वमिनकुम और आप सब से, वमिन्ना और हम सब से। जी नाजिया अब आप ट्राई कीजिए। वमिन्हु और उससे, और उनसे, वमिन्हुम और उन सब से, वमिन का और आप सब से, आपसे, वमिन्नी और मुझसे, वमिनकुम और आप सब से, वमिन्ना और हमसे। जी आगे चलिए प्लीज। अगला लफ्ज है अन का मतलब है से। तो हम इसको रज़ी अल्लाह अन्हु इस मिसाल से याद करेंगे। रज़ी अल्लाह अन्हु, इसके कितने टुकड़े होंगे? वा अन्हु, कौन करेगा? कौन से? और अन से के लिए, वन हु और उससे के लिए, वा अन्हु और उससे, ये 3 टुकड़े होंगे। चलिए आप इसका टेबल लेते हैं। अन्हु उससे, अन्हु उन सबसे, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनहुम आप सबसे, अन्ना हमसे, अन्हु अनहुम, अनका अन्नी, अनकुम अन्ना, अनहु अनहुम, अनका अन्नी, अनकुम अन्ना। चलिए आप बनाइए। यस ईशा तूर प्लीज दोहराइए। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जी नाजिया आप कोशिश कीजिए। अनहु इनसे, अनहुम उस सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। अच्छी कोशिश थी आपको इस पर। आराम से करवाए ना तो फिर हो जाता है। और करवाएगा?
हमारा खान अन हो उससे, अन हुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अन हुम आप सब से, अन्ना हमसे। ईशातुन सर मैं ईशातुन अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे हमसे। जी महनाज अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। अमरीन रियाज अनहु उससे, अनहुम उनसे, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनहुम आप सबसे, अन्ना हम सबसे। तबस्सुम आरा आप कोशिश कीजिएगा प्लीज। ओके आगे चलिए प्लीज। ये देखें अभी ये सारे टेबल वही जो हमने पीछे दोहराए हैं। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। आगे है मिनहू से, मिनहू उससे, मिनहू उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। अनहु है, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से। तो प्लीज इसको दोहराइए, पूरे टेबल को कोई दोहरा दे। जी अमरीन रियाज प्लीज। लहुम आपके लिए, मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, हमारे लिए। मिनहु उससे, मिनहुम सबसे, मिनका आपसे, मिन्नी मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। अनहुम उन सबसे, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे। ईशातुर प्लीज। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जी सिस्टर नाजिया प्लीज कोशिश कीजिए। हम सबके लिए, लाका आप सबके लिए, जी मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। मिन हो उससे, मिन से, इन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आपसे, आप सब से, मिन्ना अनहो उससे, अनकुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जी महनाज कोशिश कीजिए। क्या करना है? इस टेबल को दोहराइए। पूरा टेबल। जी लहू उससे, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जी कोई और दोहराना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए।
यस हमारा खान प्लीज दोहरा दीजिए टेबल। लहू उसके लिए, लहू उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लाना हमारे लिए, मिन हो उससे, मिन हुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन हुम आप सब से, मिन्ना हमसे, अन हो उससे, अन हुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अन हुम आप सब से, अन्ना हमसे। ये देखते हैं सिर्फ 3 नए अल्फाज। ली उसका मतलब था लिए, जिसको हम याद करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आगे था मिन, मिन का मतलब से, इसको हम इस मिसाल से याद करेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। अल अन, अन का मतलब से हम याद करेंगे रज़ियल्लाहु अन्हु। लहुम का क्या तर्जुमा और इसका इशारा किस तरफ होगा, कौन बताएगा प्लीज? छोटा सा टेस्ट होता है। लहुम, लहुम उन सब के लिए, राइट इशारा साइड पे चार, राइट साइड पे चार, चार उंगलियों से। और मिन्ना का क्या तर्जुमा होगा? मिन्ना राइट हैंड से अपनी तरफ 4 उंगलियां, 4 उंगलियों से अपनी तरफ। और अन को 4 उंगलियां सामने वाले की तरफ। 4 उंगलियां सामने से, अनकुम। तो अभी देखते हैं नुक्ता तालीम। अल्लाह से इल्म की भीख मांगिए, यानी वही फार्मूला, यानी वही दुआ आपको मिली है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है। यानी हम भी इस दुआ का विर्द किया करें, यानी रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए सबक नंबर 5 के खत्म पर आपने 57 अल्फाज सीखे। ये 57 अल्फाज नहीं बल्कि आपने 19,000 से ज्यादा अल्फाज कुरान मजीद में आएंगे। तो आपने ये याद रखने हैं 7 होमवर्क, 2 तिलावत के, 5 मिनट मसहफ से, 5 मिनट हाफसे से, 2 पढ़ने के किताब से, पॉकेट बुक या शीट से। इस कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और कायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बे ज़िदनी इल्मा का विर्द कीजिए। ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में, कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। तो इसको आपने जरूर देखना है। इसमें 20 अल्फाज के 20 असबाब के अल्फाज मानी हैं। तो चाहे आप 2 मिनट ही देखें, इसको आप जरूर देखा कीजिए। तो टीचर बनिए। आपने इस सबक को जो सीखा, क्या इसको सिखाना आसान है? तो फिर सिखाइए। सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। तो ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।